Hello students, welcome back to my channel. In this video, we will see important novelist, author D.H. Lawrence. D.H. Lawrence, born in 1885 and died in 1930. D.H. Lawrence का full name है David Herbert Lawrence. His birthplace is Nottinghamshire, England. Born on 2nd March 1930. D.H. Lawrence was a famous novelist है, ये पोएट है, एसेइस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है. एंड E.M. फॉस्टर ने इनके बारे में कहा है द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवेलिस्ट ऑफ हिज जनरेशन. ये अपने जनरेशन के ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवेलिस्ट है, ऐसा E.M. फॉस्टर कहते हैं D.H. लॉरेंस के लिए. ऐसे भी कोटेशन पे क्वेश्चन बनते हैं, सो यू शुड रिमेम्बर. So D.H. Lawrence, born in 1885, died in 1930. We must know the family background also sometime. There is a question, जैसे एक author के बारे में question आया था, हार्डी के बारे में, how his life struggle and relate to the carpenter and all that. So the little bit हमें उनकी जन्म डेट, death as well as important work की chronology, थोड़ा सा family background we must know. His father's name is Arthur Lawrence, was an uneducated coal miner. Mother is Lydia Lawrence, was educated and socially ambitious. Because of a class difference, she did not allow her children to mix with the miner colony people. This family conflict deeply influences writing. So when we talk about the literary career of D.H. Lawrence, D.H. Lawrence early career and literary beginning. His first work as a clerk in factory. पहले वो clerk का काम करते थे. Then he left job after suffering from the pneumonia. He later made Jesus Chambers or the Chambers, Hag's Farm, and Jesus admired his writing. He sent his poem to the English Review. His poems were published in 1909 under the title Still Afternoons. It's an early work of D.H. Lawrence. D.H. लॉरेंस मैरिज एंड रिलेशनशिप 1912 यानी कि 1912 लॉरेंस फेरिडा से मिलते हैं. फेरिडा वेन रिचनहॉफन उनकी वाइफ है, वाइफ ऑफ प्रोफेसर अर्नेस्ट विकली. दे फेल इन लव विथ इलेक्टिडो बवेरिया. नाउ लिसन केयरफुली. इन 1912 he met the Ferida with the wife of Professor Ernest Weekly, and they both fell in love and eloped to the Bavaria. They got married in 1914. He expressed his emotional journey in the poetry collection Look We Have Come Through. Then illness and death. Lawrence suffered from the tuberculosis throughout his life. When his condition became serious, he was sent to the sanatorium and he died on 2nd March 1930. So, due to the burial issue, he was cremated and later given a nameless gravestone with the phonics symbol made of colored pebbles. So, which are the famous novel of D.H. Lawrence wrote? D.H. Lawrence के famous work में आते हैं पहले The White Peacock 1911, The Trespasser 1912, Sons and Lovers 1913, The Rainbow 1915, Women in Love 1920. The Lost Girl 1920, later revised and republished also. Arons Road 1922, Kangaroo 1923, The Boy in the Bush 1924, The Plum Serpent 1926 and Lady Chatterley's Lover written in 1928 and इसे fully published किया गया था 1960 में. Then The Escape Cook later 19 republish भी किया गया. पहले इसका नाम Escape Cook था एंड बाद में republish करते टाइम इसको नाम दिया गया The Man Who Died. Then let's talk about the short story collection The Persuasion Officer and Other Stories, England My England and Other Stories, The Virgin and Gypsy and Other Stories. Later also he wrote the letters of the D.H. Lawrence published in 8 volumes. उनके letters 8 volume में publish किए गए हैं. Then have some poetry collection also. Love Poem and Other in 1913, Amorous in 1916, Birds, Beasts and Flowers, the collected poems of D.H. Lawrence. And दो play भी Lawrence ने लिखे हैं. The Daughter-in-Law 1912 and The Widowing of Mrs. Holroyd 1914.
So let's talk about his non-fiction work, because there is a particular section in our English literature syllabus, non-fiction. Non-fiction पे near about 10 marks के question या पूछे जाते हैं. Non-fiction is prescribed in our syllabus. So study of Thomas Hardy and other essays, 1914. Psychoanalysis and the unconscious. Then Fantasia of the unconscious. Approx of Lady Chatterley's lover. Phoenix, the posthumous papers of D.H. Lawrence, and Apocalypse. These are the non-fiction work or essay of the D.H. Lawrence. Then he wrote the travelogue or the travel writing, Twilight in Italy and others essays. अब हमें पढ़ना क्या है, कौन से नॉवेल्स वर्क जिसपे प्रीवियसली क्वेश्चन बने हैं, कौन से वर्क इंपॉर्टेंट है. वैसे तो सब का हमें एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी नॉवल है किसकी. जैसे हम चार्ल्स डिकेंस को पढ़ते हैं, बहुत सारी नॉवल है उनकी. मुल्कराज आनंद का बहुत सारा वर्क है, विलियम शेक्सपियर इज देयर. सो जब हम नॉवेल्स को पढ़ते हैं ना, तो थॉमस हार्डी, मुल्कराज आनंद, चार्ल्स डिकेंस और D.H. लॉरेंस, या फिर हम जोसेफ कॉनरेड को भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या यार ये सब एक जैसे लगते हैं. बट वी शुड मग अप इट एज, हमें इतना तो रिकॉग्नाइज मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कौन सा वर्क किसका है. देन फर्स्ट फेज में उन्होंने लिखा था द व्हाइट पीकॉक, 1909 में से लिखा था एंड 1911 में से पब्लिश किया. पहली नॉवेल थी D.H. लॉरेंस की. फिर आई थी ट्रेसपासर जो क्राइडॉन एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड थी. फेमस सन्स एंड लवर्स, इस पे क्वेश्चन बने हैं. ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है D.H. लॉरेंस की. और मदर इन्फ्लुएंस ऑन हिज इमोशनल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, रिफ्लेक्ट हिज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज मदर एंड जीसस कैम्बर्स, इनिशियली टाइटल्ड द पॉल मॉरल. Okay, so you should keep in mind Sons and Lovers or the Paul Morrell. Now, second phase, The Rainbow and Women in Love. These novels explore the human relationship, sexuality and modern industrial society. Third phase में उनका वर्क आता है एरोन्स रोड, सेट इन इटली. कंगारू सेट इन ऑस्ट्रेलिया, सेटिंग पूछी जाती है. एरोन्स रोड की सेटिंग है इटली, कंगारू की ऑस्ट्रेलिया. द प्लम सरपेंट इन मेक्सिको. These novels are called the leadership novel. इनको leadership novel भी कहा जाता है क्योंकि ये political power से related है. Next है Lady Chatterley's lover. इस पे भी क्वेश्चन बना है. Study of Constance Lady Chatterley, whose husband is paralyzed due to the war injury. Deal openly with the sexual frustration and physical love. Because of the explicit content, he is banned and fully published only in 1960. Then White Peacock 1911 की डिटेल देख लेते हैं. D.H. Lawrence wrote the White Peacock in 1911. Earlier इसका टाइटल था लाइटिटा एंड बाद में काइंड ऑफ इसका जो सोर्स है, इंस्पिरेशन है, वो है मोरिस की पेंटिंग एंड आइडल 1890 की. सेटिंग रखी गई है नेदरमेयर और द ईस्टवुड माइनिंग की. थीम फोकस करती है लव एंड मैरिज, क्लास डिफरेंस, सेक्सुअल अट्रैक्शन, फेलियर ऑफ रिलेशनशिप. व्हाइट पिकॉक में मेन कैरेक्टर थे कायरिल और द साइरिल ब्रेडशाल, लेटिशिया और द लेटी ब्रेडशाल, जॉर्ज सैक्सटन, लेस्ली टेम्पल और मेक. सो कायरल ब्रेडशाल जो है नरेटर है इस नॉवेल का. कायरल की सिस्टर है ये लेटी. एंड जॉर्ज सैक्सटन एक पैशनेट नेचुरल इंपल्सिव यंग मैन है जो डीपली लव करता है लेटी से. लेस्ली टेम्पल एक एजुकेटेड रिफाइंड इंटेलेक्चुअल मैन है, रिप्रेजेंट द सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी. स्टोरी के थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे. इन द इंट्रोडक्शन टू रूरल सेटिंग एंड कैरेक्टर, द नॉवेल बिगिन व्हेन द कायरिल और द डिस्क्राइबिंग द पीसफुल कंट्री साइड एंड वो इंट्रोड्यूस करता है his sister लेटी को and their social circle. दो important men enter their life, दो important लोग उनके लाइफ में आ जाते हैं. जॉर्ज सैक्सटन, फार्मर सन फुल ऑफ नेचुरल एनर्जी, एंड लेस्ली टेम्पल, a cultured and educated gentleman.
एंड बिगिनिंग ऑफ द लव ट्रायंगल, पहले तो शुरुआत इसकी, लेटी बिकेम्स इमोशनली एंड सोशली अट्रैक्ट, लेस्ली टेम्पल के तरफ जो है लेटी अट्रैक्टेड हो जाती है, रिप्रेजेंट द स्टेटस एंड रिफाइनमेंट. एट द सेम टाइम शी फील्स अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल एंड इंस्टिंक्टिव अट्रैक्शन टुवर्ड्स द जॉर्ज ऑल्सो, एंड जॉर्ज डीपली लेटी से प्यार करता है एंड शादी के सपने भी देखता है. देन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पैशन एंड सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी. देन Letty's marriage to Leslie Temple. Eventually, Letty rejects the George and marries the Leslie, and the marriage appears socially successful but lack of emotion and physical fulfillment. मतलब वो शादी तो कर लेती है but not fulfilled with the George. Leslie is intellectual and somewhat detached, which makes Letty dissatisfied. मतलब लेस्ली के साथ शादी तो हो जाती है जॉर्ज को रिजेक्ट करके, बट वो सेटिस्फाइड नहीं रहती है उसके साथ. George's reaction and marriage to make after being rejected, George became emotionally wounded. बेचारे जॉर्ज को दुख होता है, वो डिसइल्यूजन हो जाता है और वो मेक से शादी कर लेता है. एक सिंपल ट्रेडिशनल वीमेन है. दिस मैरिज इज नॉट बेस्ड ऑन डीप पैशन बट कंफर्मिटी है और सर्कमस्टेंसेस. देन ग्रेजुअल ब्रेकडाउन इन रिलेशनशिप, ट्रेजिक एंडिंग इसकी हो जाती है क्योंकि बाय द एंड ऑफ द नॉवेल जॉर्ज स्लाइड इनटू द अल्कोहलिज्म, डिक्लाइन हिज ओन लाइफ. लेटी एंड लेस्ली, जॉर्ज विथ मेक फेल टू ब्रिंग रियल हैप्पीनेस टुगेदर. नेक्स्ट द ट्रेसपासर. द ट्रेसपासर 1912 का नॉवल है. ओरिजिनली इसका नाम था द सागा ऑफ सिगमंड, बेस्ड है ट्रू स्टोरी ऑफ हेलन क्रोक पे एंड अफेयर विथ अ मैरिड मैन, जिसका अफेयर था मैरिड मैन हॉपकिन के साथ, एंड बाद में वो क्या कर लेती है, सुसाइड. द नॉवेल ब्लेंड द ऑटोबायोग्राफी, साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड ट्रेजिक रियलिज्म, जो फोकस करता है फॉरबिडन लव, गिल्ट, मैरिज एंड ब्रेकडाउन. अगर हम डीएच लॉरेन के सारे वर्क देखें तो इस तरह ही हमें कुछ थीम्स देखने को मिलेंगी. बेस्ड ऑन द रियल अफेयर, रियल सुसाइड, लॉरेंस फ्रेंड लवर, लॉरेंस हेल्प द हेलन क्रोक, process her grief and latter fictionalized themes here anticipate sons and lovers also. ओके, कैरेक्टर जो ट्रेसपासर में थे, एक था सिगमेंट मैकनायर, हेलन वर्डेन, बिएट्रिस मैकनायर और द फ्रैंक मैकनायर और मार्जरी एंड ग्वेन मैकनायर एंड हेलेना सिस्टर हिल्डा. आप वीडियो को पॉज करो, डिटेल में आप पढ़ सकते हो. सो समरी आल्सो गिवन हियर, दैट इज सिगमेंट मिजरेबल मैरिज, फिर सिगमेंट का सीक्रेट अफेयर विद द हेलेना, and the part event 3 में love escape to the easel of the bed, shadow of guilt begin to the grow, and this is how event 5 में एक imbalance emotional scene and last में climax the last night on the easel. नेक्स्ट हम देख लेते हैं सन्स एंड लवर. इस पे फोकस करना है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. इसकी पहले तो पब्लिकेशन डेट 1913, थर्ड नॉवेल था, सेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है. डीएच लॉरेन का थर्ड नॉवेल, 2 पार्ट में इसको लिखा गया है. डेडिकेटेड टू एडवर्ड गार्नेट, लॉरेंस एडिटर एंड मेंटर. मास्टरपीस माना जाता है, डीपली ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. ओडिपल थीम, ओडिपलस कॉम्प्लेक्स की थीम देखने को मिलती है. एंड द फर्स्ट फ्रेडियन नॉवेल इंग्लिश लिटरेचर. ओरिजिनली इसका नाम पॉल मॉरेल था और इसका सबटाइटल सन्स एंड लवर या पॉल मॉरेल, दोनों भी इसके टाइटल रहे हैं. ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर बेस्ड ऑन रियल पीपल फ्रॉम द लॉरेंस लाइफ. So the Oedipus complex refer to the unconscious sexual attraction the young boy feel for his mother as their mother and son relationship. Okay. So आगे देख लेते हैं हम. A young accompanied by the rivalry, jealousy and hostility towards his father whom he viewed a competitor for his affection. Next, Oedipus complex key concept. Oedipus complex क्या है ये concept? तो Sigmund Freud borrowed the term from the Sophocles की tragedy Oedipus the Rex or the Oedipus the King. Sophocles ने लिखी थी, जिसमें in the play Oedipus unknowingly kill his father and Lois and marries his own mother Jocasta. unknowingly हो जाता है, उसकी डेस्टिनी या उसकी प्रोफेसी में लिखा होता है ये. तो इस टर्म को सिगमंड फ्राइड ने बोरो किया था. तो कैरेक्टर सन्स एंड लवर में कौन? पॉल मॉरेल
इसका सबटाइटल भी है। सेंसिटिव यंग बॉय है, आर्टिस्टिक यंग मैन, इमोशनली टाइड टू मम्मा के साथ ज्यादा अटैच है, अनेबल टू फॉर्म हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप, और दूसरी किसी लड़के के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप करने के लिए भी अनेबल है, बिकॉज ही टू मच लव विथ हिज मदर। गर्ट्रूड मॉरेल उसकी मॉम है, एजुकेटेड है, रिफाइंड मदर है, इमोशनली डोमिनेट, अपने बेटे को डोमिनेट करती है इमोशनली, एंड लॉरेंस मदर लेडिया। Walter Morel, rough drinking coal miner whose marriage with the Gertrude collapsed based on the Lawrence father Arthur. William Morel, elder brother है, mother's favorite until his early death. Miriam Levier, spiritual intense girl है, who loves the Paul deeply but suffocate him emotionally based on the J.C. Chambers. Clara Dewey, Baxter Dewey, Annie Morel and Mr. and Mrs. Levier. These are the minor character in this novel. सो सन्स एंड लवर्स की थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं। गर्ट्रूड मॉरेल एजुकेटेड वीमेन है, मैरिज टू द अट्रैक्टिव बट रफ कोल माइनर वॉल्टर मॉरेल के साथ उसकी शादी हो जाती है, एंड सुन बिकेम अनहैप्पी इन द मैरिज लाइफ, फीलिंग इमोशनली निग्लेक्टेड, शी ट्रांसफर हर लव एम्बिशन टू द चिल्ड्रन, फर्स्ट विलियम एंड लेटर मोर इंटेंसली टू द पॉल. William grows successful in London but dies suddenly of the illness, which deepens Gertrude's emotional dependence on Paul. Paul grew up sensitive and artistic, working at the Jordan factory and forming a deep psychological bond with his mother. He meets the Miriam Leviers, a spiritual and intellectual girl who deeply admires his artistic nature. Through the Paul loves Miriam purity and companionship, he feels frustrated by her lack of physical passion. गर्ट्रूड डिसलाइक, गर्ट्रूड को भी अच्छा नहीं लगता कि ये लड़की पॉल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इमोशनल ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है, सीकिंग द फिजिकल फुलफिलमेंट, पॉल बिगिंस एन अफेयर विद द क्लारा ड्वेस, अ बोल्ड एंड सेपरेटेड मैरिड वुमेन. Their relationship is intensely sensual but lack the deep emotion connection to the Paul unconsciously, kind of a autobiographical work of D.H. Lawrence. तो इस तरह से कुछ मीनवाइल गर्ट्रूड फॉल सीरियसली इल विद द कैंसर, गर्ट्रूड को हो जाता है कैंसर, एंड पॉल बिकेम कंप्लीटली डिवोटेड टू केयरिंग हर मदर, पूरा डिवोटेडली अपनी मॉम की सेवा में लगा रहता है. टू द एंड हर सफरिंग, पॉल एंड हिज सिस्टर एनी गिव हर एन ओवरडोज ऑफ मॉर्फिन एंड इम्प्लाइंग एन एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग. मतलब मम्मा का दर्द उन्हें देखा नहीं जाता तो मॉर्फिन का ओवरडोज मॉम को दे देते हैं और उसको वो मर जाती है. आफ्टर द डेथ, पॉल फील्स बोथ शैटर्ड बाय ग्रीफ एंड स्ट्रांगली liberated from her emotional control. He gradually separates from Clara, who returned to her husband and reject the Miriam's offer of marriage. In the final scene, Paul chooses life over the despair and walking toward the glowing city light. Then next आता है The Rainbow, 1915, published in 1915. Among the Lawrence least autobiographical work, it explored the three generations of the Brangwen family in Nottinghamshire. Central theme है marital fulfillment, frustration, clash between instinct and social rule. Rainbow was initially banned for the obscenity. इसे थोड़े टाइम के लिए बैन भी किया गया था क्योंकि एक फ्रैंक डिस्कशन ऑफ सेक्सुअलिटी का फ्रैंक डिस्कशन हमें इस वर्क में द रेनबो में देखने को मिलता है. रेनबो एक बैन हुआ था एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी. Tom, Lydia, Anna, and Will and Ursula Anton each represent the different psychological marital pattern. Ursula became the central again in Women in Love 1920. is sequel to the novel. Ursula जो central हो जाती है Women in Love में जो 1920 में आया था, ये sequel था रेनबो का. So the novel shift from the rural, मतलब पहला वर्क सन्स एंड लवर, फिर द रेनबो और रेनबो का सीक्वल वुमेन इन लव. कीप इन माइंड द फैक्ट्स. सो इसमें कैरेक्टर थे टॉम ब्रैंगवेन, लिडिया ब्रैंगवेन, एना ब्रैंगवेन, विल ब्रैंगवेन एंड उर्सुला ब्रैंगवेन जो डॉटर है एन एंड विल की, एंड द एंटन सेकरबेंस्की. सो पुलिस ऑफिसर है, पोलिश ऑफिसर है ये, उर्सुलाज लवर एंड रिप्रेजेंट द डिसिप्लिन. तो टॉम ब्रैंगवेन एक स्टडी इंस्टिंक्ट ड्राइवन फार्मर है, और लेडिया ब्रैंगवेन एक पोलिश विडो है विद द डीप इंट्रोवर्टेड इमोशनल वर्ल्ड. Then Tom Brangwen and the Lydia Lenskay. In the first part, the Brangwen family background दिखाया जाता है. जब नॉवेल स्टार्ट होती है, लिरिकल पोर्ट्रेट ऑफ द फार्म लाइफ फोकस करता है ब्रैंगवेन के मेन हु ड्रॉ द स्ट्रेंथ फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट. Arrival of the Lydia Lenskay, a Polish widow of revolutionary, arrive in the village. वो रहने आ जाती है उधर विद उसकी बेटी एना के साथ. Her exotic background fascinates Tom and who senses deep emotional complexity. Tom fall in love
and Tom became emotionally and physically drawn to Lydia. Despite her initial reserve, they share a profound but difficult intimacy. Tom and Lydia marry, building a life based on the mutual need, struggle, and the moment of intense connection. Tom and Anna की relationship, Tom grows deeply attached to the Anna, raising her as his own daughter. Their relationship is emotional and affectionate until Anna became older and more independent. Anna's maturity and spiritual turmoil दिखाया जाता है. She will meet the Brangwen. Will Brangwen उसे मिल जाता है. Tom का nephew है ये, and वो influenced by the Ruskin and obsessed with the church architecture. So they marry quickly, driven by the intense physical attraction. Anna and जो nephew है टॉम का, विल, वो दोनों शादी कर लेते हैं इस तरह से. और फिर वहां पे एना और विल की एक बेटी होती है उर्सुला, और यही एक लीड फिगर या मेन फिगर फिर वुमेन इन लव जो सीक्वल है रेनबो का उसमें दिखाई देती है. ओके, वुमेन इन लव बेसिक फैक्ट सीक्वल है रेनबो का. कंटिन्यू द लाइफ ऑफ ब्रैगमैन सिस्टर, अर्ली टाइटल द सिस्टर्स, द वेडिंग रिंग था इसका. ओके, कंसिडर द लॉरेंस का मोस्ट फिलोसॉफिकल एंड कॉम्प्लेक्स नॉवेल माना जाता है ये. इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें देखने को मिलेंगे. लॉरेंस रोड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. मैन्युस्क्रिप्ट ट्रैवल्ड सीक्रेटली बिकॉज ही वाज सस्पेक्टेड टू बीइंग अ स्पाई. वुमेन इन लव वाज द बैंड फॉर द ऑब्ससेनिटी एंड इट वाज द पार्ट ऑफ ब्रैगमैन फैमिली सागा. द रेनबो, वुमेन इन लव, उसका सीक्वल. तो वुमेन इन लव, उर्सुला ब्रैगमैन मेन कैरेक्टर, ग्रैडमैन ब्रैगमैन, रूपर्ट ब्रिंकिन एंड गर्टा क्रच एंड द लॉरेक, ये फिर वुमेन इन लव के कैरेक्टर हो जाएंगे. सो द पहले वेडिंग सीन दिखाया जाता है इसमें. उर्सुला एंड गार्डन अटेंड द वेडिंग ऑफ लारा क्रिच एंड दे ऑब्जर्व द गेराल्ड क्रिच. गार्डन फील्स इमीडिएट फैसिनेटिंग. फिर रूपर्ट ब्रिंक स्कूल इंस्पेक्टर विजिट करता है उर्सुला के स्कूल को, क्योंकि उर्सुला जो है हमारी एक स्कूल टीचर है. इंटेलिजेंट एंड इमोशनली मैच्योर, रिप्रेजेंट लाइफ ग्रोथ एंड नेचुरल वैलिडिटी. गॉर्डन ब्रैगमैन आर्टिस्टिक, सेंसिटिव बट डिस्ट्रक्टिव है ये. रूपर्ट ब्रिंकिंग स्कूल इंस्पेक्टर है ये. गेराल्ड क्रिच इंडस्ट्रियल मैग्नेट एंड लोरेक जो है वो स्कल्पचर है. So Ursula and Brinkin intellectual love. Ursula and Brinkin slowly grow intimate and they discuss about meaning of love, individual freedom, rejection of Christian morality. The story शुरू होती है Gordon and Geralt dangerous attraction. Gordon became the art of tutor to the Geralt's sister Winfred, and Geralt's industrial power is shown in the famous scene. He brutally control and kill a horse. This is for show his violent personality. Gordon is drawn to the Geralt's force and danger. फिर सीन आता है द वाटर पार्टी सीन. मेजर सिंबॉलिक सीन है. गॉर्डन डाइव्स इनटू द वाटर एंड गेराल्ड इज मेस्मराइज्ड. उर्सुला एंड ब्रिंकिन quarrel again. Brinkin's ideal relationship. Brinkin tells the Geralt he wants a perfect eternal friendship between two men. Geralt feels something deeply but cannot express. This is the Lawrence idea of blood brotherhood. Ursula accepts the Birkin. आफ्टर मेनी फाइट्स उर्सुला फाइनली एग्री हो जाती है बिरकिन के साथ शादी करने के लिए. Gudrun and Geralt's relationship turned dark. Gordon became the psychologically dominant. Their fights increase and Geralt loves Gordon obsessively, but she treats him with the contempt. Emotional sadism develop. Journey to the Alps. All four travel to the सब चारों चले जाते हैं स्नो कवर्ड एल्प्स स्विट्जरलैंड में. देयर इज अ फाइनल स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. Gudrun meets the Lorek and German sculptor, and Lorek influenced the Gudrun with intellectual and artistic talk, and they become jealous and humiliated and insecure. तो फाइनल कोलैप हो जाता है उनकी शादी का and tries to strangle the Gudrun, and all this Geralt की डेथ भी हो जाती है. स्लिप्स इनटू द स्नोई वैली में वो गिर जाता है. नेक्स्ट है लेडी चैटरलेस लवर. ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल वर्क रहा है. पब्लिश इन 1928, बैन इन यूएस टिल 1950. जॉनरा इसका साइकोलॉजिकल एंड सोशल इरोटिक नॉवल है. ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है. इसमें सेटिंग रखती है रग्बी हॉल में. मेन कैरेक्टर है इसके लेडी कॉन्स्टेंस कॉनी चैटरले, यंग सेंसिटिव इमोशनल स्टाफ वाइफ है ये. सर क्लिफोर्ड चैटरले कैनी के हस्बैंड है. पैरालाइज फ्रॉम द वेस्ट डाउन. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये नीचे कमर के नीचे से पैरालाइज हो चुके हैं. देन ऑलिवर मेलोरो है, एक गेम कीपर ऑन द चार्टरलेस एस्टेट, एक सोल्जर रहा है ये भी. देन द मिशेलिस, अ प्ले राइट हु ब्रीफली
become Connier's lover and relationship fail because of lack of emotional warmth. मिसेस बोल्टन भी है, क्लिफोर्ड्स की नर्स है, कंपेनियन है. लेडी चटरलेस लव की स्टोरी में ये दिखाया जाता है, कॉन्स्टेंस या कॉनी जो है रेड मैरीज सर क्लिफोर्ड चैटरले के साथ उसकी शादी हो जाती है पहले वर्ल्ड वॉर के पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले. क्लिफोर्ड रिटर्न फ्रॉम द वॉर. जब क्लिफोर्ड वॉर से लौटता है तो वो पैरालाइज हो चुका होता है, मेकिंग देयर मैरिज इमोशनली एंड फिजिकली अनफुलफिल्ड. लाइफ ऑफ रॉकबी हॉल बिकेम डल एंड सफोकेटिव. कैनी ग्रोज लोनली. कॉनी जो है लोनली हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है, डिस्कनेक्टेड हो जाती है. शी बिगिन अ ब्रीफ अफेयर विद द मिशेलिस, a playwright. उसका फिर शुरू हो जाता है. During her walk in wood, Connie meets the Oliver Moller, and reserved and thoughtful game maker. So she is gradually drawn to the natural masculinity, simplicity, closeness to the nature. In a moment of emotional crisis, Connie visits his hut, and their first intimate encounter also there. So she feels physically alive and spiritual, renewed when she have the affair with him. So this is how in each and every work the extramarital affair confirmed there in the D.H. Lawrence work. Okay guys, I hope that you understood.